नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। जैसे कि आपको पता है, जिला कठुआ के डीसी राजेश शर्मा ने एक ऑर्डर निकाला है हाल ही में कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ पे एनक्रोचमेंट हुई है उनको हटाया जाएगा। उसी चीज़ को देखते हुए आज रेवेन्यू विभाग की टीम जो है खख्याल गांव में आई है और अलर्ट इंडिया न्यूज़ की टीम भी जो है वो खख्याल गांव में आई है देखने के लिए कि किस तरह से लोगों ने इलीगल एनक्रोचमेंट्स जो हैं की हैं, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स भी जो हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिलीभगत से जो है उन लोगों ने एनक्रोचमेंट्स की हैं। इस वक्त हम गांव खख्याल में हैं, हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿੱਟੂ ਸਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋਈ? ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਇਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ 15 16 ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਇਨਕਲੂਮੈਂਟ ਸਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ 15 16 ਜੀ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕੋਈ 450 ਘੁਮਾ ਰਗਾ ਸਰ ਨਾਗਮਣੀ ਪੂਲ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਗਮਣੀ ਪੂਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹੀਆਂ ਸੇਮ ਇਨਕਲੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਹੀ ਦਿਖਣ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਨਸ਼ਨ ਭਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਰ ਸਭ ਇਨਕਲੂਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਕਟੋਏ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਕੋਈ ਕੁਦਕੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਵਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਛੱਡੀ ਯਾਰ ਚਲੀ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਇਹ ਬਾਵੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਦਿਖਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਇਹ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਣ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੂਲਣ ਬੜੀਆਂ ਸਰ। ਉਹ ਨਾਗਮਣੀ ਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੂਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ 432 ਕਮਾ ਰੱਖਵਾ ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ। 432 ਕਮਾ ਸਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਸਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਲ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਰ 50-60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਣਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਖਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਪਲੰਥ ਭਜਦਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਾਰਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਏ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦੇਖਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੁੱਥੇ ਤੋਂ ਕੁੱਥੇ ਕੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਆਖੀ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੱਥ ਚਲੋ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨੇ ਆ ਨਵੀਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਸਰ ਥੋੜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਰ? ਇਹ ਕੂਲ ਹੈ 22 ਫੁੱਟ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ 22 ਫੁੱਟ ਉਧਰ ਤਾਂ 22 ਫੁੱਟ ਸਰ ਇੱਧਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਰ ਦੇਖੀ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ 22 ਫੁੱਟ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੂਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 22 ਫੁੱਟ ਹੈ। 22 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲ ਨਾਗਮਣੀ ਕੂਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲ ਹੈ ਸਰ 22 ਫੁੱਟ ਸਰ ਉਧਰ ਤਾਂ 22 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ 1.5 ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰ। ਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖੀ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਦੱਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ 22 ਫੁੱਟ ਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਨਿਕਾਸ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ नहीं है। एनक्रोचमेंट ਜਿਹੜੀ है जबरदस्त तरीके से। तो हम अपने चैनल के माध्यम से क्योंकि डीसी साहब जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कठुआ में, क्योंकि काफ़ी जो है इलीगल एनक्रोचमेंट्स जो हैं वो हटाई जा रही हैं, और हम अपने चैनल के माध्यम से और खख्याल के लोगों के माध्यम से डीसी साहब को ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर है जो जगह और कहीं खरीदते हैं और उसके आगे जो है वो और जगह ले लेते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो निशानदेही की गई थी। आपको मैं ये बता देता हूँ कि कितनी एक्स्ट्रा जगह जो है वो कवर की गई है। ये देखिए, ये उनकी पहली प्लिंथ है और ये जो है ये बाद में जो है ये एनक्रोच की गई जगह है। और किस तरह से ये लोग जो हैं धड़ल्ले से जो है बिना किसी डर खौफ के जो हैं ये लोग जो हैं इलीगल एनक्रोचमेंट्स करते हैं। तो और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं उनकी यहाँ पे क्या समस्या है। आज ग्राउंड ज़ीरो से जो है अलर्ट इंडिया न्यूज़ की टीम जो है खख्याल गांव में आई है और खख्याल के लोगों की जो है वो समस्याएं जो है आज लोगों के सामने लाई जाएगी और प्रशासन के सामने लाई जाएगी। को कहूँ कि एक बार ये कूल दिखा दे। ये कूल जो है अब ये कूल नहीं रही, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि 22 फुट जो चौड़ी
ये कूल है और किस तरह से गैर कानूनी तरीके से जो है वो एनक्रोचमेंट की गई है और कैसे इन्होंने एक पाइप के माध्यम से इस पानी को निकालने की कोशिश की गई है, पर ये पानी जो कूल का पानी जो है ये लोगों के खेतों में नहीं जा सकता और लोग जो है वो खेती बाड़ी करने के लिए उन लोगों के पास पानी जो है वो नहीं पहुंच रहा, क्योंकि ये जो खख्याल गांव है यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पे लोग जो है अपनी खेती बाड़ी जो है वो करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कूल है। नहीं मुझे ये सुनाओ, कोई स्ट्रक्चर बनेगा ना ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ स्ट्रक्चर थोड़े बनेगा लोग किराए बाई वास्ता ਕੀਤੀ ਨੇ ਇनको ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਕਾਨ ਪੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਕਾਨ ਪੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਸਮਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹੋ ਆਏ ਭੇਜੇ ਸਮਨ ਇਹ ਸਾਰ ਕੋ 6 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋਈ 5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਉਹਨੇ ਠਾਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪਊ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਾਫ ਹੀ ਹੈ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ मैं 10-20 हज़ार रुपये भी लाया हुआ बाकी सारा मैं खुद गया उन्हें मैं बोलिया भी मैं यार तुम नरेगा तहत लेंदे हो टेंडर लेबर मिलती नहीं लेबर मिलती नहीं तो JCB कहना कढ़ाओ ना तुस फिर मैं बोलते महा अं लोग टैक्स देने इस जमीन का पानी का स्कूल का माली आवाना तुसें तो सारा पता ठीक तो मैं बोलते कहे देंगे हो मैं सरकार डंडा मारिए भी ले लेंदे नहीं तो जिन्हें नहीं दिते सरकार हो जी जमीन पहले दी होई दी नहीं होई दी सर शेख जेह्ड़े सरकार रकबा होए कह रहे फिर होएदा इस कारण होएदा जो टैक्स नहीं दिता लोकें माली आवाना तो गौरमेंट सरकार कर जेह्ड़ा उंदा रकबा ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਫੂਲ ਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਸਰ ਇਹ ਫੂਲ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸਲ ਲੱਭਾ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 22 ਫੁੱਟ ਕੂਲ ਹੈ। आज 26 जून 2025 को जहाँ पे एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुआ खख्याल गांव में और ये हुआ उस दिन डीसी साहब ने मीटिंग करी कि जो फ्लड अफेक्टेड एरिया उनको फ्लड में जहाँ पे पर्सपेक्टिव हो सकता है कि फ्लड आएगा वहाँ से क्लीन करो। हमारी तहसीलदार मैडम नगरी यहाँ पे आई और जहाँ पे जो लीगल स्ट्रक्चर थे जहाँ पे पानी सब कुछ चल रहा था उनको तोड़फोड़ कर दी और जहाँ पे जो सही में बॉटल नेक थे जिन्होंने इंक्रोच किया था, पानी रोका हुआ था, किसी ने दुकान बनाई, किसी ने मकान बनाया, उनको किसी के नहीं छोड़ा। मैंने बोला पहले मैडम जी ये क्या कर रहे हो आप? कहते मैंने जो करना है कर दिया, बाकी आपकी मर्जी, आपने जहाँ तो कंप्लेन करनी करी है। और उसके बाद मैंने ग्रीवेंस डाली LG सेल में कि जहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुआ, जहाँ पे पिक एंड चूज बेसिस पे काम हुआ है, नगरी तहसीलदार ऑफिस में पिक एंड चूज बेसिस पे काम होता है। वो कंप्लेंट हमारी पहली बार एड्रेस हुई करी इन्होंने ACR कठुआ ने, वो रिजेक्ट कर दी कि कुछ नहीं हुआ है, कोई एंटी मतलब कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है स्टेट लैंड पे। जब मैंने दोबारा अपील करी, अब तहसीलदार हेडक्वार्टर जो है कठुआ में वेरीफाई करने आए हैं और उनको जो जिन लोगों को जो सफ़र कर रहे हैं, जिनके घरों में अभी पानी आया फ्लड में और जिनके ऊपर जो जेन्युइन थे उनको सारों ने यहाँ पे अपनी ग्रीवेंसीज रखी हैं और उन्हें सही में पॉइंट बताया कि ये सारे इंक्रोच्ड हैं और लेटर सी कि तहसीलदार हेडक्वार्टर जो हैं वो एक अच्छा रेमेडियल स्टेप्स लेंगे और पानी लोगों की निकासी का हल हो जाएगा। मुझे आप ये बताइए कि ये जो कूल है, ये कूल तो दिख नहीं रही है, है नहीं कूल, सारी एनक्रोच हो गई।
मुझे आप ये बताइए कि डीसिल्टिंग के लिए इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल वालों के पास पैसा आता है, वो कहाँ जाता है? वो हमने पूछा इनके लिए कि डीसिल्टिंग कौन करेगा। कहते हैं कि आजकल जो वीडियो ब्लॉक वाले करते हैं ये उसमें नरेगा के तहत होता है, और नरेगा में जो ये सारा काम मैनुअल है नहीं, ये सारा मशीन से होना चाहिए, और नरेगा का जो काम है वो सारा मैनुअल होता है। इस कारण वो कहते हैं कि हम कोई काम नहीं करता है, मैनुअल वाला काम नहीं करता है, फंड लेस हो रहे हैं। हाँ, क्या पता लैब्स हो रहे हैं या कहाँ से खा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट कोई नेवर नो। हाँ। जिन लोगों ने काम करवाया उनका कुछ नहीं हुआ। मतलब एक बंदे ने करवाया, कहता है मैंने यहाँ पे मशीन लगवा के साफ करवाई, उनको पैसा नहीं मिला। अच्छा, कि ये नरेगा का फंड है तो मैनुअली में हुआ नहीं, मशीन का निकला। क्या समझते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट्स की हैं, जैसे कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स भी हमने यहाँ पे सुना है, हाँ वो है। और कई लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने इलीगल एनक्रोचमेंट्स की हैं, मकान बनाए हैं, कूलों को दबा दिया है, किस तरह की कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए? और आपको क्या लगता है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बिना ऐसा हो सकता है कभी? देखिए, जहाँ पे प्रॉब्लम आई हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कम्प्लीटली अवेयर किया कि जहाँ पे ये इशू आ रहा है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही मतलब ऑनर्स होना चाहिए कि एनक्रोचमेंट हुए एंड दे शुड टेक रेमेडियल स्टेप्स, बट टिल डेट नो रेमेडियल स्टेप्स हैव बीन टेकन। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। एलजी जी एलजी सेल में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हमें अपनी कंप्लेंट देनी है, वो करती हैं, और यही हमने प्लेटफॉर्म का फ़ायदा लेके अब हम यहाँ पे आए हैं। कितने साल पहले जो है ये एलजी सेल में कंप्लेंट डाली? कंप्लेंट तो बड़ी देर से डाल रहे हैं, पर ये वाली कंप्लेंट जो है कुछ 6 मतलब जून से है, 6 महीने पहले की आपने डाली है, और आज जो है वो प्रशासन जागा है, प्रशासन जागा है। तो आज ही आए हैं। क्या आपको विश्वास है कि जो आपने इनको बताया उस पर कोई कार्रवाई होगी? विश्वास पे तो दुनिया है जी, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो दोबारा चलेंगे आगे। अच्छा, कुल कितनी फुट जो कूल है और कितने किसान से जो है ये 450 एकड़ जगह जमीन को ये सिंचाई करते हैं। अच्छा ब्लॉक होता है घरों में पानी घुसता, जी, और ये कूल नागमणि कूल कुख्याल में ब्लॉक नगरी में, इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशनें भी दी, हमारे पास पड़ी भी है, PDF बना के हमने डीसी को मेल किया, मुनाज साहब को, वो तो चले गए जहाँ से, डिवकाम को किया और CM को वो भी किया, कोई नहीं सुनता। वो तो ऊपर से तो कार्रवाई करते हैं, अब नीचे वाले करें तो कार्रवाई तो तहसीलदार के अंडर है। मतलब आपको लगता है मिली भगत है उनकी सबकी? उनकी तो नहीं, ऊपर वालों की तो कोई मिली भगत नहीं। हाँ। गवर्नमेंट तो इनको लेटर भेज देगी, हाँ। अभी ये लेटर का ऊपर नहीं, जिन्होंने कार्रवाई करनी है उनकी। हाँ, वो लोग गलत है, उनको सही काम करना चाहिए। इसमें क्या है, ये सरकारी कूल है, किसी के बाप की तो है नहीं, और सरकार किसान इसका टैक्स देते हैं सरकार को, पर एकड़ का 40 रुपये जब 50 रुपये पर एकड़ का साल का, एक जो कूल नाला जहाँ कोई भी नहर है सफाई के लिए। और मेरे को एक अफसर ने ये भी बोला था, बोला किस लिए देते हो टैक्स? मैं उनके पास गया था इसके लिए, 60,000 रुपये स्कूल का आया था पिछले प्लान में, और वो 60,000 का मेरे हिसाब में तो 10,000 रुपया भी नहीं लगाया बाकी सारा। और 65 कूलें जाती हैं ब्लॉक के अंदर, DC साहब उसको मार्क करके देते हैं, 65 कूल सफाई होनी चाहिए इस ब्लॉक में। मेरे हिसाब में 10 साल से तो कोई कूल पूरी सफाई नहीं हुई, साफ बोल रहा हूँ, नहीं तो आप कैमरा मार के देख लो भाई, अगर सफाई इस साल की होती तो आपको दिखाई देती। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ किसान जो यहाँ के खख्याल गाँव के हैं, इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इलीगल एनक्रोचमेंट जो है वो कूल पे हुई है। हाँ जी, ठीक है, डीसिल्टिंग यहाँ पे नहीं होती है, इनका ये कहना है। वीडियो ब्लॉग जो है डीसिल्टिंग करता है, और वो ये कहता है कि ये मनरेगा के तहत जो है इसकी डीसिल्टिंग की जाएगी, पर यहाँ पे जो है वो जो मनरेगा का काम है वो लोगों द्वारा किया जाता है, पर ये जो डीसिल्टिंग स्कूल की है वो बिना मशीन के नहीं हो सकती है। इसलिए जो है उन लोगों ने, उस ब्लॉक ने इन लोगों को इनके ऊपर ही छोड़ दिया है। और वो आपको जैसे पता है कि 2 महीने पहले कितनी त्रासदी आई थी, लोगों के घरों में पानी घुस गया था, लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है डिपार्टमेंट को डीसिल्टिंग के पैसे आते हैं। एक ब्लॉक में कितनी कूलें हैं? DC साहब ने 65 कूल दी थी इनको। हाँ। 65 में इसमें 2-3 निकाला होगा इन्होंने, बाकी कागजों में राइट ऑफ हो गया उसका। हाँ, तो इनका ये कहना है कि DC साहब ने 65 कूलों का उनको साफ करने के लिए बोला था वीडियो ब्लॉक को। और मैं एक बात और बता रहा हूँ, नरेगा जिनका मजदूरी कार्ड बना है, उनसे कोई और निकालता है, फोटो बुक चबा के मिली वक्त का काम है। मैं देखता हूँ
जहाँ भी काम होगा वो जाएंगे, 10-20 लड़के फोटो खिंचाएंगे, पैसा उनके अकाउंट में आएगा, पैसा दूसरा आदमी ले लेगा, उनको 150 रुपये फोटो खिंचाने का देंगे, ये साफ है। नहीं तो उनको उन लोग आदमियों से पूरा दिन काम करा के देखो, 1 घंटा भी करके काम दिखाए तो मान लो नहीं मरे हुए लोग नहीं होता नहीं तो बहुत क्या लगता है आपको कितनी धांधली है इसका? तो कोई हिसाब भी नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई लेता ही नहीं, इसका पॉइंट ही नहीं लेता इसका। 50 बार ये भी चला गया, इसके घर में ही पानी मैंने घुसता है। सर मेरे घर में इतना पानी आया था, मैंने तो ऐसे छोड़ दिया, बड़ा तहसीलदार से पॉइंट नहीं चुकता इस चीज़ का। अरे हम क्या करेंगे, पटवारी आता है, पटवारी भी बस आता है, बड़ा नाला जो है ये इसका कागजें पे नहीं है, कागजों में नाला ही नहीं है। अच्छा, तो मैं कागजी जा के है फिर हाँ। वो फिर बोल देना आते बा वो है वो नहर है। आपने सुना इन लोगों का ये कहना है कि ये स्कूल का जो है मुआवजा देते हैं पूरे साल, तो भी जो है इन लोगों को पानी जो है, तो भी इनको पानी जो है इसका नहीं मिलता। आपके खेतों में जो है वो पानी नहीं जाता, क्योंकि इलीगल एनक्रोचमेंट्स जो है यहाँ पे हुई हैं। इनका साफ तौर पे कहना है, दुकानें बनाई इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, जिन लोगों ने इन इलीगल एनक्रोचमेंट इस नहर पे की है, चाहे मकान बनाए हैं, चाहे मकान में जाने के लिए रास्ता बनाया है, चाहे दुकानें बनाई हैं, उनको डिसमेंटल करना चाहिए और इन लोगों को राहत मिलनी चाहिए। कुदरत का कोई पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने सुना कि इन लोगों भाई साहब ने बोला कि जब हमारे यहाँ पे पानी आया था तो मेरे घर में इतना पानी आ गया, हमने डिपार्टमेंट से बात की पर हमारी सुनने को कोई तैयार नहीं है और हमने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखना ये है कि इस रिपोर्ट के बाद जो है कितनी जल्दी प्रशासन हरकत में आता है, क्या इलीगल एनक्रोचर्स के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, क्या पीला पंजा जो है वो यहाँ पर चलाया जाएगा, इन लोगों को राहत मिलेगी, क्या यहाँ पर डीसिल्टिंग होगी और क्या यहाँ इस नाले को जो है साफ सफाई की जाएगी, क्या इन किसानों के खेतों में स्कूल का नाम क्या है, नागमणि कूल है। ये बहुत बड़ी नागमणि कूल है और बहुत पुरानी नागमणि कूल है, 22 फुट चौड़ी है और 4.5 किलोमीटर लंबाई और 4.5 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। आप देखना ये है नागमणि कूल को कठुआ डीसी कितनी जल्दी इंसाफ दिलवाते हैं और नागमणि कूल जो है वो खुलती है और लोगों को राहत मिलती है। देखना ये होगा इस रिपोर्ट के बाद। खख्याल से सहयोगी राजकुमार के साथ मैं अरुण त्रिसर।